ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा राज्यसभा से तस्वीर दिखाएंगे जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो आप उसको नकारते हो, तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए। या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं, सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है कि लोग इस मंसूबे से आए हैं। मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नथिंग। तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि गवर्नमेंट रिकॉर्ड नाउ सर, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा. Sir, you are making a ridiculous speech. You want to misuse the platform, I am telling you. Yes. No. I am very clear about it. Honorable members, I carefully heard the leader of the house. Leader of the house did not say what LOP is saying. Leader of the house said, we must be home, we must take one stand, whether suitable to us, regarding running of the house. You are saying something else. No, every time, sir, you take few seconds. Sir, this house is privileged. Nothing is going on to go. This house is privileged. It has an opposition party. And this is how we are heading. This is how we are heading. LOP must remember, leader of the house did not say what he is saying. He has to be attentive. Leader of the house said, we must be similar in dealing with situations. No, sir. No, sir. Tiruchi, Mr. Tiruchi want to say something? Mike is not. Mr. Tiruchi. Is it a point of order or an Yes, sir, observation? point of order. Okay. I'll be able to deal with it. Entirely different issue, sir. And, sir, kindly let me over, yes. And then I'll take business of the day. Sir, one moment, sir, it's a point of order. Kindly let me over, yes, sir. It's concerned about all members, not this side or that side. Under which rule? Sir, you want the rule? Yeah, point of order has to be under rule. 258, sir. 258. 258. 1 second. 58. Honorable member, I have before me 258. Any member may at any time submit a point of order for the decision of the chairman, but in doing so shall confine be the point. I am confining to my point, sir. No. This. One second. You are a very senior member. Rule 258 says every member has a right to raise a point of order. Yes, I am asking. But he has to raise a point of order with respect to another rule. Yes, sir. Yes, obviously. Kindly, sir. Sir, it's an issue, sir. Please, kindly pay. No, under which rule? I know. Sir, every member has a right to raise point of order under Rule 258. But the member has to specify he is referring to which rule which has been infringed. Let me make it clear, sir. You enlighten me, sir. Any member may at any point of time submit a point of order for the decision of the chairman, but in doing so shall confine himself stating the point. I have the point, sir. Rule is only this. Rule is this. My point, please, it's very serious, please. Sir, we appreciate that you take so much of efforts to uphold the dignity and decorum of this house. But our dignity is at stake. Sir, reposing our confidence upon you, we are very much agonized to raise this, sir. One of the members of this house, my party colleague, Mr. Abdullah, when he went to the Central Hall, he was stopped there asking whether he is an MP. Number two,
Number two, sir. This is not the first. Please, sir. Sir, I said me over years. Number second, sir. Sir, number second. The other day I forgot a paper of mine. My PS climbed the step and handed it to me. Later, after I have come into the house, he was called by the security, and I warned him that his ID card will be cancelled. Sir, who gave that? These are all we are experiencing only. Sir, I am more than for. तो ये तस्वीर आपको हम राज्यसभा से दिखा रहे थे, जहां पर एक तरफ बीजेपी ने राहुल और सोनिया पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला है। इससे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, जिनकी ओर से यहां पर जोरदार बातें कही गई। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे राज्यसभा से, जहां विपक्ष का हंगामा सामने आया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, केजीएमयू में सफेद दाग सिरोसिन का प्रभावी इलाज होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर, केजीएमयू में सफेद दाग सिरोसिन का प्रभावी इलाज। और इसके लिए एनडीयूबीपी को लेकर अहम खबर सामने आई है और संस्थान को 15 लाख रुपए का बजट पास होने की बात, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक 20 दिसंबर को होगी। तो नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक 20 दिसंबर को होगी। चालू वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट पास पर बैठक, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले बैठक 12 दिसंबर को होनी थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चालू वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट पास पर बैठक, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पहली ये बैठक 12 दिसंबर को होनी थी। अहम खबर
क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर अहम खबर और लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक 20 दिसंबर को, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट पास पर बैठक की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आगरा से आपको हम बताते हैं। इस बीच आगरा से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आगरा से बड़ी खबर आपको हम बता दें। महिला की गला रेत कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगरा के इरादत नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। आगरा से खबर, महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। खारी नदी के पास मिला महिला का शव और हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको बता दें, जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। Able to us or राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। और अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। इस बीच आगरा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों से 3 युवकों ने विवाद किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुरक्षा कर्मियों को लेकर बड़ी जानकारी। ढाबा संचालक ने विवाद होने से इनकार किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों और ढाबा संचालकों से विवाद हुआ। आगरा से खबर, वृंदावन दर्शन के लिए आए धीरेन्द्र शास्त्री। ढाबा संचालक ने विवाद होने से इनकार किया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर, वृंदावन दर्शन के लिए आए धीरेन्द्र शास्त्री। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां मलिहाबाद में मिले जंगली जानवर के पैरों के निशान। तो मलिहाबाद में जंगली जानवर के पैरों के निशान मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मलिहाबाद में 2 कुत्ते के बच्चों को जानवरों ने मारा। बुजुर्ग महिला पर भी जानवर ने किया हमला। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अब सीधा आपको राजस्थान से तस्वीर दिखाएंगे जहां पर राइजिंग राजस्थान समिट में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है। साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। आने वाले अनेक सालों तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में रहने वाला है। भारत में युवाओं का सबसे बड़ा पूल होने के साथ ही सबसे बड़ा स्किल्ड युवा वर्ग भी होगा। इसके लिए सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। साथियों, बीते दशक में भारत की युवा शक्ति ने अपने सामर्थ्य में एक और आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। भारत का यूपीआई, भारत का बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सिस्टम, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत को दिखाते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा प्रभाव हम यहां राजस्थान में भी देखने जा रहे हैं। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान तो राइजिंग राजस्थान समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई। राजस्थान से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा और उनकी ओर से संबोधन के दौरान बड़ी बातें कही गई हैं। तो राइजिंग राजस्थान समिट में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।